ایک منٹ صبر کریں. عدالت سے کیا چاہ رہے ہیں؟ صبر کریں. آج ہی ہم نے ہیبیس کارپس کی ایک اپلیکیشن فائل کی ہے، پٹیشن فائل کی ہے 491 CRPC اور 199 کے تحت، جس کے اندر بنیادی طور پہ ہم نے درخواست عدالت سے یہ کی ہے کہ چونکہ جو اس میں پٹیشنرز ہیں مہدی کاظمی صاحب اور فائمہ کاظمی صاحبہ، والدین بچی کے، ان کی بچی واپس والدین کے گھر آنا چاہتی ہے. اس حوالے سے میڈیکل ایکسپرٹس جو ہیں انہوں نے بھی اپنی رپورٹ دی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ بچی والدین کے پاس آنا چاہتی ہے. بچی نے خود ان گنت خط لکھے ہیں والدین کو، ہر جب بھی ملاقات ہوتی ہے وہ خط دیتی ہے مزید، وہ بھی ریکارڈ کے اوپر ہیں. تو اس لیے، اور چونکہ فیملی کورٹ کے اندر جو معاملات ہیں، جو کہ ایویڈنس کے پورے معاملات ہیں، وہ بہت ٹائم لیتے ہیں، تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ ایک لیتھارجی ہے ہمارے لیگل سسٹم میں انہیرنٹ، اور بچی کی ایجوکیشن لاس بھی ہو رہا ہے، فزیکل مینٹل ہیلتھ کا بھی لاس ہو رہا ہے، تو ایک جورسڈکشن ہے اس عدالت کے پاس کہ بچی کی کسٹڈی دے سکے والدین کو، تو اس کی بنیادی طور پر درخواست ہے. اور اس کے بعد جو مزید پریئر یہ ہے کہ اگر بچی کی کسٹڈی والدین کو دی جاتی ہے تو جو ٹریفکنگ کے لاز ہیں، جس لاز کے تحت اس کیس کی سماعت بھی ہو رہی ہے ٹرائل کورٹ میں، اس میں اس طرح کی بچیوں کو ان کے گھروں پہ پھر راؤنڈ دا کلاک سیکورٹی بھی دی جاتی ہے. تو وہ سیکنڈ پارٹ ہماری درخواست کا ہے کہ ایک بار اگر بچی والدین کے پاس آتی ہے تو جو مینڈیٹڈ بائی لا نیسیسری ارینجمنٹس کرنے ہیں سیکیورٹی کے، جب بھی بچی کو عدالت سے گھر آنا ہو یا گھر سے اسکول جانا ہو، اور یہ انشور کرنا کہ اوائڈ کیا جائے کہ اس کی سے ملاقات یا سامنا. اس حوالے سے پھر ہم نے سیکنڈ ریمیڈی مانگی ہے. ابھی جہاں تک بچی کی کسٹڈی کی بات ہے، بچی کی کسٹڈی عدالت نے کال کی ہے اپنے پاس جمعے کی تاریخ کو، کہ وہ بچی سے دریافت کر سکیں کہ وہ کیا چاہتی ہے، اور پھر اس کے بعد عدالت آگے مزید فیصلہ کرے گی جو بہتر سمجھتی ہے. اچھا، اس میں تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ جو کرسمس ہوئی تھی ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر، اس کو کیا تھا جج صاحب نے آپ سے؟ دیکھیے، فیملی کورٹ کے اندر ہم نے اپیل کی، ریکویسٹ فائل کی تھی شروع میں، ایک تو فائنل کسٹڈی کی بچی کی، اس کے ساتھ ہم نے ایک انٹرم اپلیکیشن دی تھی کہ عبوری طور کے اوپر انویمنٹ یہ ہو کہ بچی کی انٹرم کسٹڈی ہمیں دی جائے اور ساتھ میں ملاقات الاؤ کی جائے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ ملاقات تو ہماری الاؤ ہو گئی، وہ بھی صرف مہینے میں 2 بار، مگر انٹرم کسٹڈی ہمیں نہیں ملی. اس کی ہم نے اپیل فائل کی تھی. پہلے جو فیملی کورٹ کی اپیل جاتی ہے سیشن جج کے پاس، وہاں پہ سیشن جج نے یہ کہا کہ اپیل مسترد کر دی کہ جی انڈر دا پروسیجر فیملی کورٹ کے جو عبوری درخواستوں پہ فیصلے ہوتے ہیں، انٹرم جو فیصلے ہوتے ہیں، ان کی اپیل مینٹینیبل نہیں ہے. ہمارا ایک لیگل ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو، ان کا ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے. تو چونکہ وہاں پہ بھی وہ ڈسمس ہو گئی، تو اس وقت ہائی کورٹ کی کسی لیول کے اوپر بچی کی کسٹڈی کی کوئی درخواست پینڈنگ نہیں ہے، تو اس لیے ہائی کورٹ کی یہ بینچ مجاز ہے اس بات کی کہ وہ ہماری درخواست سن سکے. تو فیملی کورٹ کی پروسیڈنگز اپنی سیپریٹ چلیں گی، وہ چلتی رہیں گی. 491 کے اندر ہیبیس کارپس کے اندر اسپیشل پاورز ہیں ہائی کورٹ میں کہ وہ بچی کے ویلفیئر کو دیکھتے ہوئے فوراً کوئی انٹرم فیصلہ کرے کہ بچی فوراً والدین کے حوالے کر دی جائے. تو جمعے کو جب بچی آئے گی، کورٹ اپنے آپ کو پہلے مطمئن کرے گی، باقی فریقوں کو سنے گی، پھر جو فیصلہ کرنا ہے وہ فیصلہ کرے گی. اچھا، ایک چیز دوبارہ سے، ایک تو ملاقات ہوتی رہتی ہے بچی سے والدین، اس میں ان کا کیا موقف ہے، کیا کہتی ہے، اور دوسرا آپ نے خطوط کی بات کی. ٹھیک ہے، لیکن بچی کا جو موقف ہے وہ بچی نے خود ایک نہیں، ایک سے زائد خطوط کے اندر لکھ کے دیا ہے. وہ سارے خطوط جو ہیں وہ ہم نے ٹرائل کورٹ کے اندر بھی فائل کیے ہوئے ہیں. ان خطوط کو دیکھنے کے بعد ہی دراصل، اور بچی کی رضامندی جاننے کے بعد ہی کہ بچی اپنے مائنڈ میں کلیئر ہے کہ والدین کے پاس آنا چاہتی ہے، جب ہم نے ٹرائل کورٹ میں درخواست دی تھی کہ جی بچی ہمیں والدین کو دے دی جائے، تو آپ کے علم میں ہے کہ ملزم نے ایک جھوٹ پہ مبنی اور بدنیتی پہ مبنی درخواست لگائی ٹرائل کورٹ پہ کہ ان کو ٹرائل کورٹ پہ کانفیڈنس نہیں، بھروسہ نہیں ہے. اور ایک بہت غلط بات اس طرح سے کی کہ ایک تو انہوں نے درخواست میں جھوٹ بولا کہ جی ہمیں بچی کے میڈیکل سرٹیفکیٹ کی سرٹیفائڈ کاپی نہیں دی جا رہی، جبکہ 8 دسمبر کو وہ سرٹیفائڈ کاپی کا آرڈر گرانٹ ہو گیا تھا، اور 10 دسمبر کو یہ اپلیکیشن لگا کے 2 دن بعد یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ جی ہمیں کاپی نہیں دی جا رہی. تو وہ تو آن دا فیس آف اٹ جھوٹ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ نے نوٹس کر دیا ان کی درخواست کے اوپر کہ یہ بچی کی کسٹڈی چاہ رہے ہیں، تو نوٹس تو ہر درخواست کے اوپر ہوتا ہے، دونوں فریقوں کو سن کے پھر ڈیسائیڈ ہوتی ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ نے نوٹس کے ساتھ ہی جو ہے بچی کی کنسنٹ بھی منگا لی شیلٹر ہوم سے، تو یہ تو بڑا باعث بیہیویئر ہے. تو ہم نے اس وقت بھی جج صاحب کو یاد دلایا، اور جب ٹرانسفر اپلیکیشن ڈی جے صاحب کے پاس چلے گی تو ہم وہاں پہ بھی ایویڈنس رکھیں گے کہ 8 اگست کو جب یہ JM 26 کے سامنے محترم جج کے سامنے کیس تھا، تو اسی ملزم نے ایک درخواست دی تھی کہ مجھے بچی سے ملاقات کرنی ہے، اور اس کے اوپر بغیر ہمیں سنے ہوئے نوٹس ہوا تھا 11 اگست کو، اور 11 اگست کو ہی ہمیں سنے بغیر جو ہے اس کے اوپر کال کر لی گئی تھی بچی کی کنسنٹ. اور ہم نے نہیں جا کے کہا تھا GM صاحب کو کہ آپ کا باعث بیہیویئر ہے یا یہ آپ انفیئر ہمارے ساتھ ٹریٹ کر رہے ہیں. نارمل پروسیجر کی باتیں ہیں، ایگزیکٹ سیم یہ پروسیجر، ایگزیکٹ سیم یہ ریلیف آلریڈی اکیوز لے چکا ہے اس کیس میں عدالت سے. ایگزیکٹ سیم چیز جب ہم کر رہے ہیں تو ججز کی بدنیتی کی بات آ گئی.
तो फिर हम वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो उन्होंने अगस्त में रिलीफ लिया था अपने लिए, ये एप्लीकेशन ग्रांट करवाई थी या नोटिस लिया था, वो बदनीयती पे मबनी था। ये सारी बातें खैर ट्रांसफ़र एप्लीकेशन जब सुनी जाएगी, 5 जनवरी को उसकी डेट है, वो वहाँ पे मामला डिसाइड होगा। फ़िलहाल ये कि 6 तारीख को अब यहाँ पे समाअत है हाई कोर्ट। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। वैसे वो ओपन कोर्ट में समाअत होगी, बच्ची का स्टेटमेंट होगा, वो आपके साथ रहना चाहती है नहीं रहना चाहती, क्या कहते हैं सवाल साहब? देखें, सबसे पहले तो मैं मुअज़्ज़ज़ अदलिया का शुक्रिया अदा करूँगा कि आज उन्होंने बच्ची की कस्टडी कॉल की है और बच्ची को डायरेक्टली आके कोर्ट के अंदर बताएगी कि वो क्या चाह रही है। पिछले 2.5 महीने से जो मेरी बच्ची के साथ मुलाकातें हो रही हैं, उसमें बच्ची मुसलसल ये फरियाद कर रही है रो रो के कि मैंने अपने घर, अपने वालिदैन के पास, अपनी बहनों के पास वापस जाना है। तो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने ये मौका दिया कि अब बच्ची यहाँ पे आएगी और वो खुद बताएगी, और मैं एक दफ़ा फिर मुअज़्ज़ज़ अदलिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, इसी अदालत ने आपकी बेटी को कराची मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। आज जब समाअत हुई, आप भी मौजूद थी, मुसलसल जब मीटिंग होती है वहाँ जाती हैं, तो अब क्या तवक्को है आपको कि जुम्मे के रोज़ जब बच्ची यहाँ आएगी तो क्या स्टेटमेंट देगी, आपके साथ जाएगी? क्योंकि अदालत ने सवाल भी किए और कहा कि क्या वाकई बच्ची अपने माँ बाप के साथ जाना चाहती है? वो तो जब आएगी तो वो सबको ही पता चल जाएगा कि वो कहाँ जाना चाहती है, कहाँ नहीं जाना चाहती। मगर मैं अभी मुझे ये फीलिंग हो रही है कि अगर हमें इंसाफ मिल जाता है तो उसका मतलब है कि मुझे तो ऐसे लगा जैसे हमें इंसाफ ही नहीं मिलेगा, क्योंकि हम सारी कोशिशें कर चुके थे, लेकिन अगर हमें इंसाफ मिल जाता है, जो कि इंशाल्लाह मिलेगा, तो इसका मतलब है कि वाकई इंसाफ मिलता है। तो मैं बस ये बोलूँगी, बस मेरी बच्ची मुझे दे दें जल्द से जल्द, क्योंकि वो बहुत तकलीफ़ में और मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, बहुत ज़्यादा। हमारा पूरा घर बहुत तकलीफ़ में है, बस ये बोलूँगी। ठीक है, ठीक, थैंक यू। एक मिनट सब्र करें, सब्र अदालत से क्या चाह रहे हैं? करें, सब्र करें। आज ही हमने हेबियस कॉर्पस की एक एप्लीकेशन फ़ाइल की है, पिटिशन फ़ाइल की है 491 CRPC और 199 के तहत, जिसके अंदर बुनियादी तौर पे हमने दरख्वास्त अदालत से ये की है कि चूँकि जो इसमें पिटिशनर्स हैं, मेहदी काज़मी साहब और साइमा काज़मी साहिबा, वालिदैन बच्ची के, उनकी बच्ची वापस वालिदैन के घर आना चाहती है। इस हवाले से मेडिकल एक्सपर्ट्स जो हैं उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि बच्ची वालिदैन के पास आना चाहती है। बच्ची ने ख़ुद अनगिनत ख़त लिखे हैं वालिदैन को, हर जब भी मुलाकात होती है वो ख़त देती है, मज़ीद वो भी रिकॉर्ड के ऊपर हैं। तो इसलिए, और चूँकि फ़ैमिली कोर्ट के अंदर जो मामलात हैं, जो कि एविडेंस के पूरे मामलात हैं, वो बहुत टाइम लेते हैं, तो इस चीज़ को देखते हुए कि एक लेथार्जी है हमारे लीगल सिस्टम में इनहेरेंट, और बच्ची की एजुकेशन लॉस भी हो रहा है, फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ का भी लॉस हो रहा है, तो एक जुरिस्डिक्शन है इस अदालत के पास कि बच्ची की कस्टडी दे सके वालिदैन को, तो उसकी बुनियादी तौर पर दरख्वास्त है। और उसके बाद जो मज़ीद प्रेयर ये है कि अगर बच्ची की कस्टडी वालिदैन को दी जाती है, तो जो ट्रैफिकिंग के लॉज़ हैं, जिस लॉज़ के तहत इस केस की समाअत भी हो रही है ट्रायल कोर्ट में, उसमें इस तरह की बच्चियों को उनके घरों पे फिर राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी भी दी जाती है। तो वो सेकंड पार्ट हमारी दरख्वास्त का है कि एक बार अगर बच्ची वालिदैन के पास आती है, तो जो मैंडेटेड बाय लॉ नेसेसरी अरेंजमेंट्स करने हैं सिक्योरिटी के, जब भी बच्ची को अदालत से घर आना हो या घर से स्कूल जाना हो, और ये इंश्योर करना कि अवॉइड किया जाए कि उसकी उससे मुलाकात या सामना। इस हवाले से फिर हमने सेकंड अपील रेमेडी मांगी है। अभी जहाँ तक बच्ची की कस्टडी की बात है, बच्ची की कस्टडी अदालत ने कॉल की है अपने पास जुम्मे की तारीख को, कि वो बच्ची से दरियाफ्त कर सकें कि वो क्या चाहती है, और फिर उसके बाद अदालत आगे मज़ीद फ़ैसला करेगी जो बेहतर समझती है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये बता दें कि जो क्रिसमस हुई थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, फिर उसमें क्या था जज साहब ने आपसे? देखिए, फैमिली कोर्ट के अंदर हमने अपील की, रिक्वेस्ट फाइल की थी शुरू में, एक तो फाइनल कस्टडी की बच्ची की, उसके साथ हमने एक इंटरम एप्लीकेशन दी थी कि अबूरी के तौर के ऊपर अरेंजमेंट ये हो कि बच्ची की इंटरम कस्टडी हमें दी जाए और साथ में मुलाकात अलाउ की जाए। आपको ये पता है कि मुलाकात तो हमारी अलाउ हो गई, वो भी सिर्फ महीने में 2 बार, मगर इंटरम कस्टडी हमें नहीं मिली। उसकी हमने अपील फ़ाइल की थी। पहले जो फैमिली कोर्ट की अपील जाती है सेशन जज के पास, वहाँ पे सेशन जज ने ये कह के अपील मुस्तरद कर दी कि जी अंडर द प्रोसीजर फैमिली कोर्ट के जो अबूरी दरख्वास्तों पे फैसले होते हैं, इंटरम जो फैसले होते हैं, उनकी अपील मेंटेनेबल नहीं है। हमारा एक लीगल डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, उनका एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। तो चूँकि वहाँ पे भी वो डिसमिस हो गई, तो इस वक्त हाई कोर्ट की किसी लेवल के ऊपर बच्ची की कस्टडी की कोई दरख्वास्त पेंडिंग नहीं है, तो इसलिए हाई कोर्ट की ये बेंच मजाज है इस बात की कि वो हमारी दरख्वास्त सुन सके। तो फैमिली कोर्ट की प्रोसीडिंग्स अपनी सेपरेट चलेंगी, वो चलती रहेंगी। 491 के अंदर हेबियस कॉर्पस के अंदर स्पेशल पावर्स हैं हाई कोर्ट में कि वो बच्ची के वेलफेयर को देखते हुए फ़ौरन कोई इंटरम फैसला करे कि बच्ची फ़ौरन वालिदैन के हवाले कर दी जाए। तो जुम्मे को जब बच्ची आएगी, कोर्ट अपने आप को पहले मुतमईन करेगी, बाकी फरीकों को सुनेगी, फिर जो फैसला करना है वो फैसला करेगी। अच्छा, एक चीज़ दोबारा से
एक तो मुलाकात होती रहती है बच्ची से वालदेन, उसमें उनका क्या मौक़िफ़ है, क्या कहती है, और दूसरा आपने खतूत की बात की जी क्या है? देखिए भी बच्ची का जो मौक़िफ़ है वो बच्ची ने ख़ुद एक नहीं एक से ज़ायद खतूत के अंदर लिख के दिया है। वो सारे खतूत जो हैं वो हमने ट्रायल कोर्ट के अंदर भी फ़ाइल किए हुए हैं। उन खतूत को देखने के बाद ही दरअसल और बच्ची की रज़ामंदी जानने के बाद ही कि बच्ची अपने माइंड में क्लियर है कि वालिदैन के पास आना चाहती है, जब हमने ट्रायल कोर्ट में दरख्वास्त दी थी कि जी बच्ची हमें वालिदैन को दे दी जाए, तो आपके इल्म में है कि मुल्ज़िम ने एक झूठ पे मबनी और बदनीयती पे मबनी दरख्वास्त लगाई ट्रायल कोर्ट पे कि उनको ट्रायल कोर्ट पे कॉन्फिडेंस नहीं, भरोसा नहीं है। और एक बहुत गलत बात इस तरह से की कि एक तो उन्होंने दरख्वास्त में झूठ बोला कि जी हमें बच्ची के मेडिकल सर्टिफिकेट की सर्टिफाइड कॉपी नहीं दी जा रही, जबकि 8 दिसंबर को वो सर्टिफाइड कॉपी का ऑर्डर ग्रांट हो गया था और 10 दिसंबर को ये एप्लीकेशन लगा के 2 दिन बाद ये झूठ बोल रहा है कि जी हमें कॉपी नहीं दी जा रही, तो वो तो ऑन द फेस ऑफ इट झूठ है। फिर उन्होंने कहा कि जी आपने नोटिस कर दिया इनकी दरख्वास्त के ऊपर कि ये बच्ची की कस्टडी चाह रहे हैं, तो नोटिस तो हर दरख्वास्त के ऊपर होता है, दोनों फरीकों को सुन के फिर डिसाइड होती है। और फिर उन्होंने कहा कि जी आपने नोटिस के साथ ही जो है बच्ची की कंसेंट भी मंगा ली शेल्टर होम से, तो ये तो बड़ा बायस बिहेवियर है। तो हमने उस वक्त भी जज साहब को याद दिलाया और जब ट्रांसफ़र एप्लीकेशन डीजे साहब के पास चलेगी तो हम वहाँ पे भी एविडेंस रखेंगे कि 8 अगस्त को जब ये JM 26 के सामने मोहतरम जज के सामने केस था, तो इसी मुल्ज़िम ने एक दरख्वास्त दी थी कि मुझे बच्ची से मुलाकात करनी है, और उसके ऊपर बग़ैर हमें सुने हुए नोटिस हुआ था 11 अगस्त को, और 11 अगस्त को ही हमें सुने बग़ैर जो है उसके ऊपर कॉल कर ली गई थी बच्ची की कंसेंट। और हमने नहीं जाके कहा था GM साहब को कि आपका बायस बिहेवियर है या ये आप अनफेयर हमारे साथ ट्रीट कर रहे हैं। नॉर्मल प्रोसीजर की बातें हैं, एग्जैक्ट सेम ये प्रोसीजर, एग्जैक्ट सेम ये रिलीफ ऑलरेडी अक्यूज़ दे चुका है इस केस में अदालत से। एग्जैक्ट सेम चीज़ जब हम कर रहे हैं तो जजेस की बदनीयती की बात आ गई। तो फिर हम वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो उन्होंने अगस्त में रिलीफ लिया था अपने लिए, ये एप्लीकेशन ग्रांट करवाई थी या नोटिस लिया था, वो बदनीयती पे मबनी था। ये सारी बातें खैर ट्रांसफ़र एप्लीकेशन जब सुनी जाएगी 5 जनवरी को उसकी डेट है, वो वहाँ पे मामला डिसाइड होगा। फ़िलहाल ये कि 6 तारीख को अब यहाँ पे समाअत है हाई कोर्ट। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। वैसे वो ओपन कोर्ट में समाअत होगी, बच्ची का स्टेटमेंट होगा, वो आपके साथ रहना चाहती है नहीं रहना चाहती, क्या कहते हैं इस हवाले से आप? देखें, सबसे पहले तो मैं मुअज़्ज़ज़ अदलिया का शुक्रिया अदा करूँगा कि आज उन्होंने बच्ची की कस्टडी कॉल की है और बच्ची को डायरेक्टली आके कोर्ट के अंदर बताएगी कि वो क्या चाह रही है। पिछले 2.5 महीने से जो मेरी बच्ची के साथ मुलाकातें हो रही हैं उसमें बच्ची मुसलसल ये फरियाद कर रही है रो रो के कि मैंने अपने घर, अपने वालिदैन के पास, अपनी बहनों के पास वापस जाना है। तो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने ये मौका दिया कि अब बच्ची यहाँ पे आएगी और वो खुद बताएगी, और मैं एक दफ़ा फिर मुअज़्ज़ज़ अदलिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, इसी अदालत ने आपकी बेटी को कराची मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। आज जब समाअत हुई आप भी मौजूद थी, मुसलसल जब मीटिंग होती है वहाँ जाती हैं, तो अब क्या तवक्को है आपको कि जुम्मे के रोज़ जब बच्ची यहाँ आएगी तो क्या स्टेटमेंट देगी, आपके साथ जाएगी? क्योंकि अदालत ने सवाल भी किए और कहा कि क्या वाकई बच्ची अपने माँ बाप के साथ जाना चाहती है? ठीक है, तो जब आएगी तो वो सबको ही पता चल जाएगा कि वो कहाँ जाना चाहती है, कहाँ नहीं जाना चाहती। मगर मैं अभी मुझे ये फीलिंग हो रही है कि अगर हमें इंसाफ मिल जाता है तो उसका मतलब है कि मुझे तो ऐसे लगा जैसे हमें इंसाफ ही नहीं मिलेगा, क्योंकि हम सारी कोशिशें कर चुके थे, लेकिन अगर हमें इंसाफ मिल जाता है जो कि इंशाल्लाह मिलेगा, तो इसका मतलब है कि वाकई इंसाफ मिलता है। तो मैं बस ये बोलूँगी, बस मेरी बच्ची मुझे दे दें जल्द से जल्द, क्योंकि वो बहुत तकलीफ़ में और मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, बहुत ज़्यादा। हमारा पूरा घर बहुत तकलीफ़ में है, बस ये बोलूँगी। ठीक है, ठीक, थैंक यू।